Hello, everyone. Welcome to Oh It's Trendy. With me, Ankita, and my host and co host, Aryan, we will talk about everything and anything that's trendy. So, stay tuned. Shoot your questions. I have prepared it, but we have to complete. ठीक है. So what do you think? ऐसा होता है ना कि people are like spending more and more time on internet nowadays with Yeah, having everything like reels. They have a lot of like सब जो platforms है सब पे videos सब कुछ है. So how do you think, मतलब, what do you think what an average person spends, or what amount of time an average person spends on internet or in like scrolling? something. It's a very good question. But I think एक एवरेज पर्सन कितना स्पेंड करता है वो तो हम नहीं बता पाएंगे. हम कितना स्पेंड करते हैं वो आई कैन से अगर अंदाजा लग जाए तो एट एन एवरेज अगर हम Do you वीकेंड्स spend पे. like हाँ, ऑन वीकेंड्स माय एवरेज टाइमिंग इज अराउंड 4 to 5 hours ऑन सोशल मीडिया. और ऐसे ऑन वीकडेज इट इज 2 hours 3 hours सोशल मीडिया. yeah, right. मोस्ट ऑफ द टाइम कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है बट हाँ. And like वो तो depend करता है, when you're busy so you don't have time to look up, but once you start doing it there's no end to it. नो नो आई रिमेम्बर जब रील्स का फीचर आया था ऑन इंस्टाग्राम. सो आई वाज एट फर्स्ट आई वाज अगेंस्ट इट. नॉट अगेंस्ट इट. मतलब उस टाइम पे क्या था ना, टिकटॉक का वो चला था. टिकटॉक वाज Yeah. देयर, फिर Mm. वो बैन हुआ एंड देन इंस्टाग्राम रील्स आया. तो Mm-hmm. आई थॉट कि नहीं यार, एज जो टिकटॉक के वीडियोस देखे हैं, जितने भी वायरल वीडियोस होते थे, मीम्स में देखा या कुछ भी, तो आई आई हैड अ परसेप्शन कि नहीं, अच्छा नहीं होगा रील सेक्शन. एंड एंड सडनली Where वन डे for आई जस्ट content क्लिक्ड ऑन इट. wise. हाँ, कंटेंट वाइज अच्छा नहीं होगा रील सेक्शन. तो आई रिमेम्बर एक दिन बस आई जस्ट क्लिक्ड वन. ठीक है, ऑन रील. आई केप्ट स्क्रोलिंग 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 एंड उस दिन से लेके आज तक आई गेस आई एम स्टिल स्क्रोलिंग ऑन रील्स एंड देयर इज Scrolling नो on, कमिंग बैक. there's no coming back actually. We are so stuck with social media these days now. There's no going back. It's not just about us, our generation, but it's also about the younger generation and the older generation who are just new to the technology, or the younger generation जिन्हें starting से technology देखने मिल रहा है. मतलब everyone is there. You can't tell कि वो इंसान, if they are not scrolling reels, they are going on YouTube shorts or everything. There is something, an alternative to like waste your time on. I in some way or other they are people are consuming content. चाहे वो इंस्टाग्राम रील से हो, यूट्यूब से हो या शॉर्ट से हो. तो या डिपेंड. Yeah. व्हाट डू यू थिंक कि एज वी टर्म इट एडिक्शन, बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपको मतलब सामने वाले को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है, इंटरनेट का एडिक्शन हो गया, तो वो व्हाट डू यू थिंक एक पर्सन को कब पता चलता है कि मुझे अब एडिक्शन लग गया? The thing is that सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि उसको एडिक्शन लग गया है. पीपल अराउंड हिम नोज कि उसको एडिक्शन लग चुका है. People don't know. Even I spend a lot of time on reels, and there are like DMs आए हुए रहेंगे, but एक होता है ना कि you open a some मतलब even friends shares reels. तो एक reel खुला, I haven't reacted to that reel, but I'm scrolling and I'm stuck in that circle because I've not replied to my friend. They have seen I've opened their DMs, but they have no idea that I'm strict. Well, I'm that cycle, and there's no going back. And फिर I'll stop it somewhere, and I have like totally forgot कि मैंने अपने friends को reply नहीं दिया या कुछ भी वैसा वाला situation. And it's like dramatic actually. उसके बाद situations थोड़ी dramatic हो जाती है. आई कैन वाउच फॉर दैट. I know, right? But this is really. हाँ, बट आई फील ना कि अपना जो जनरेशन है, Hmm. वी हैव सीन वी हैव सीन टेक्नोलॉजी ग्रो इन आवर in front of us.
मीन्स Mhm. इफ यू गो बैक टू 2009 2008 वाले टाइम्स में, Yeah, from the उस very टाइम पे वो beginning. छोटा, या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो वो एक छोटा फोन होता था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं देयर होता वाज, था। तो हाँ, सोशल मीडिया के नाम पे ऑर्कुट था, उसके बारे में हम लोग को पता नहीं था, ऑर्कुट के ठीक टाइम है। पे मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे को ऑर्कुट चलाना नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो बस एक ऑर्कुट नाम सुना था कि ऑर्कुट हाँ, सुना करके है। कुछ हाँ, होता है, एग्जैक्टली कुछ वही। होता है, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शंस भी बहुत कम होते थे घर पे, हर घर पे इंटरनेट कनेक्शंस होना वाज अ ऑब्वियसली नॉट। बिग उस टाइम पे वाज तो अ वो बिग थिंग। पैक आता था ना। उस टाइम पे हम लोग को कहाँ अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता था। वो पैक के स्क्रैच करो, लेके आओ 2 दिन का, 2 दिन का इंटरनेट। हाँ फिर 2 दिन बाद यू हैव टू स्क्रैच अ कार्ड अगेन। दैट वाज लिटिल, आई हाँ, लाइक दैट डेज। so I feel कि उस we come from that generation, and for us इस इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडिक्टेड होना एंड फिर उस एडिक्शन से बाहर निकलना इज क्वाइट इजी, या, relatively to the कंपैरेटिवली टू द comparatively वन to some people who are born in this with era, कि जहाँ technology, पे, yeah, in this या विद era. टेक्नोलॉजी, They're जिनके हाथ surrounded with में, this technology. या You will not believe this generation. I have no idea कि इन्हें नॉर्मल वॉच देखनी नहीं आती। दे आर या सो कि उन्हें फोन में देखना आता है, उन्हें डिजिटल वॉच समझ में आती है, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एनालॉग जो वॉच होती है हम लोग की नॉर्मल वाली, जो हमें सिखा दी गई थी बहुत पहले कि ये ऐसे 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 हो जाएगा। दे हैव नो आइडिया हाउ दैट। या I I guess technology is also making people dumb. या एट अ सेंस यू कैन से दैट, एट अ सेंस डम भी बोल सकते हो, एंड इट्स अप टू यू कि आप किस पर्पस से यू किस आर टर्म यूजिंग में इट। उसको। हाँ, तो यू आर जस्ट यूजिंग फॉर द सेक ऑफ यूजिंग इट, कि भाई मजा आ रहा है, करना है, वो तो ठीक है, मतलब यू कैन बी लिटिल, कि ठीक है, मतलब एडिक्शन नहीं हो गए, ठीक है, जस्ट एक फन एलिमेंट के लिए, बट आप एकदम घुसे जा रहे हो उसमें कि मतलब अब करना ही है, मजा आ रहा है, 4 4 घंटे रील स्क्रॉल हुए जा रहा है, तो सी उसमें वो तो थोड़ा, हाँ। उसमें और थोड़ा प्रॉब्लम हो एक्चुअली गया। क्या, जो घुसते जा रहा है ना, उसको नहीं पता कि वो घुसते जा रहा है। वो हाँ ऑलरेडी, he or she is already in that content. They can't come out of it. It takes a lot of हाँ effort, lots of willpower कि मैं इंटरनेट छोड़ रहा हूँ। It's not easy. It's not. People who are still on not active on Instagram or any social platforms, I really appreciate, because in this generation, it's really different. Like real and real life का जो वो बैलेंस बना रखे हैं ना लोगों ने, उससे अपने आप को दूर रखना is kind of difficult, I guess. What do you think? डिफिकल्ट भी है, रील एंड रियल लाइफ में एक बैलेंस बनाना। देखो, द पीपल हु से दैट आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, आई डोंट यूज दिस, भाई आप व्हाट्सएप पे यूज कर रहे हो, I दैट्स am. सोशल मतलब मीडिया no one ओनली। is far from it. They are, but they are not as आई much गेस, as हाँ, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया व्हाट्सएवर, obvious. ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, यू आर नॉट ऑन Mhm. सोशल मीडिया, बट यू आर डिपेंडेंट सम हाउ ऑन थ्रू सोशल मीडिया ओनली, बिकॉज आपका कनेक्शन ही वैसे, सोशल मीडिया हैज बिकम समथिंग कि पीपल मीन्स, अब सोशल मीडिया पीपल यूज फॉर न्यूज, फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स सम, मतलब हाँ, पूरा स्पोर्ट्स तो नहीं दिखे बट एक no. हाईलाइट है, कुछ दिख जाता है, ठीक है, तो न्यूज मीडियम के लिए सोशल मीडिया आजकल यूज करते हैं लोग। True. और भी फिल्म, कुछ 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 क्लिप्स देखना है या कुछ देखना है फॉर एंटरटेनमेंट तो है, पर्पस है, तो बहुत सारे चीजों के लिए सोशल मीडिया आ चुका है। हैव यू सीन एनी समवन्स रील जो यू फेल्ट कि भाई ये तो बहुत अनरियल है, मतलब Like uh, different personality on real life और real life, मतलब हाँ 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 जमीन हाँ आसमान वाला फर्क। थोड़ा फर्क तो तुमको आजकल हर जगह मिलेगा, हर दूसरे इंसान की लाइफ में, एग्जैक्टली, बिकॉज पीपल शेयर द हैप्पी मोमेंट्स, द मोमेंट दे वांट टू शेयर विद द पीपल,
No one shares their dukhi wala situation or they are in stuck in them. No one shares that. They shares when they're happy, they're surrounded with people, or they're like having the best day of life, whatever. They share good things. And so obviously, I have no idea. I have seen someone on reels like they have a very good, like everything is well maintained, a great social life, a great friend circle, great love life, सब कुछ दिख रहा है वहाँ पे. But I'm not seeing उनके hardships or what they are facing, what they're going through. I don't have any idea. So even those aspects really affect their life, I think. And when you मतलब वो होता है ना, when you have half of the knowledge, it's more risky than having no knowledge about a person. Yeah. और सोशल मीडिया तुम्हें आधी ही नॉलेज देता है. You are not fully aware of the entire situation. You'll see a clip of a thing and वहां कुछ कैप्शन में लिख देगा and people will believe it. To the day, people are so, उनको सबसे सही सोर्स ऑफ न्यूज, सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया लगता है. आई वोंट से इट्स नॉट, इट इज, बट most of the time it's half the truth. And that even affects people in a negative way, obviously, because adha knowledge is never good. Either I prefer not having any knowledge of the situation rather than having half of the knowledge. Don't you feel that people feed that knowledge to you? Half knowledge. People show that I'm happy on social media, but my life is fucked up in real life. People don't show that. They Yeah, people just create that situation of FOMO. ठीक है? हाँ. Because everyone wants to show कि I'm really happy, मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है. I don't think it's necessary. I won't say it's necessary. Some people might do this intentionally, but most of the people, I won't say they do it intentionally. They just show what I'll see. I'll put up a situation. मैं बताऊंगी मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ ना, तो I'll tell people कि ये ऐसा हुआ. I won a lottery or whatever. ठीक है, जो भी. But I lost money, so I won't tell people. I'll go out and tell people कि मैं पैसे हार गई, क्योंकि they won't मेरे को संभावना तो देंगे नहीं. They will like, oh, what a stupid act you did. तो people, the reaction people create ना कि if I'm having, मेरे को एक अच्छा सा ड्रेस मिला है, I'm showing that to people, I wore it or I went on a date or whatever, तो मैं उन लोगों को वो दिखाऊंगी ना, तो people will like, oh my god, that's really nice, वो ऐसा बहुत अच्छा situation था. They'll appreciate it. But if I show them ना कि मेरा ये ऐसा हो गया, ऐसा situation था, I am not that well maintained or whatever, तो I guess people मतलब I don't know how they're reacting these days. Oh, ड्रामे कर रही है. I guess हाँ, fear of trolling आ जाता है ना सामने वाले के मन में. So I prefer showing the good side of my life rather than showing the bad side, because no one understands it, first of all. If you are not in that situation or someone who are surrounded, people won't understand it. And they don't invest that amount of time or energy to understand someone else. It's like वो वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, तो लोग भी वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है. True. I think it depends on person to person. So मतलब related to this only, कि is it that hard to differentiate among two, मतलब the real people who are just showing it on the reel और उनका real life, is it that difficult to differentiate among two? जब तक आप किसी पर्सन से आई फील की बात नहीं करोगे ना, तो डिफरेंशिएशन आप क्रिएट नहीं कर पाओगे. ठीक है. Correct. एक Right. हाँ, तो जैसे यू माइट सी समवन मेकिंग अ कंटेंट, फनी कंटेंट. ठीक है. तो वो जरूरी थोड़ी कि वो लाइफ में हमेशा फन ही करते रहेगा, उसके लाइफ में भी वो ट्रैजिक ट्रैजिक फेस आएगा. बट एज एन ऑडियंस आई ओनली सी कि हाँ भाई, ये तो कंटेंट अच्छा बना रहा है, फनी बना रहा है, इसका जब भी कंटेंट आता है फनी. तो मेरे परसेप्शन से तो या कि ही इज अ गुड गाय, या गुड गाय या He's a funny गर्ल, guy. फनी He's a गाय, funny person. हमेशा इसका लाइफ मस्त है. बट जब तक हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे,
how will I, how will we know? On an emotional So, level. on an emotional level, on a personal level also. Because once Yeah, you right. connect with someone ना, you get to know कि ठीक है इनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो your perception changes that time. बट अभी ऐसे तो अगर आप किसी का रील देख रहे हो, ठीक है, तो यू कांट Mm-hmm. से कि भाई, यू कांट डिफरेंशिएट, देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट. एग्जांपल, आई वाज स्क्रॉलिंग फ्यू डेज बैक और मेरे कंटेंट में बहुत आता है. एक है इंस्टाग्राम पे क्रिएटर, देयर आर टू क्रिएटर्स. वन इज Mm. हमजा सईद, ठीक है, Okay. एंड वन इज Nash Reel. So both of them create content which is something like fantasy for some. Means Nash Reel creates content जो एक रिलेशनशिप में, हेल्थी रिलेशनशिप में होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कैसे कोई एक दूसरे को ट्रीट करता है. एंड शी शोज इट वेरी, मतलब वैसा ना कि अ, अगर आप रील वो देखोगे तो यू विल फील कि भाई रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो, नहीं तो मत नहीं हो. Hamza Said, on the other hand, also creates the same content, kind of content. He says कि people you deserve वाला करके, कि uncle you deserve या father you deserve वैसे करके. तो उसके कंटेंट में भी वही रहता है कि एक आपके माइंड सेट में बन जाता है कि भाई ये ऐसा हो तो ही, मतलब हो वो रिलेशन हो तो वैसा ही हो, नहीं तो नहीं. तो दिस इज थिंग कि आप डिफरेंशिएट करना मुश्किल है. अब उनके लाइफ में तो जरूरी नहीं कि वैसे पीपल मिले ही होंगे. And this तो create a देन, sense of missing out. Like yeah, FOMO. like वो FOMो create हो जाता है ना कि हाँ. तुम्हारे पास जो भी है ना, तुम उसमें कमी निकालने लग जाओगे इनकी ये सब चीजें देख के। अरे मेरा कहने का मतलब है कि एक पॉइंट पे आपका वो हो जाता है ना कि वी वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन ओनली इन अवर. एक, डू यू थिंक कि आजकल एस्ट्रोलॉजी भी बहुत आने लगा है इंस्टाग्राम पे? अरे इट इज एक्सट्रीम सजेस्टिंग यू. लेवल। इफ यू आर अ नॉन बिलीवर, तुमको बिलीवर नहीं बना दिया ना, तो वो अपना नाम बदल देंगे। अरे हम तो पहले से भी बिलीवर है, लेकिन अब मेरा हालत खराब हुआ है. ये बिलीवर होता है एक एक लेवल पे होता है। सी दिस थिंग्स मैटर, इवन आई थिंक दिस थिंग्स मैटर। ठीक है, फ्रॉम मतलब बट हर चीज में उस चीज को निकालना के लिए ओ आई एम अ मैं तो ऐसी हूँ, आई एम अ वर्गो। नो ब्रो, यू आर नॉट। यू आर जस्ट बीइंग अ बैड पर्सन, दैट्स इट। यू can't blame the stars for every situation you create in your life or you create in someone else's life. It's about the stars obviously, but it's depends on you too, your your mental, मतलब what a mental situation, whatever situation you're in, वो बहुत इफेक्ट करता है. So it's not just about the stars, it's about you also, what kind of person you are. You're just a bad person, you have to accept that. अरे कुछ कुछ रील्स में तो ये भी होता है ना कि आपके हाथ में अगर ये रेखा है तो ऐसे होगा, वो रेखा है तो तुम ये बहुत नहीं पैसे वाले। होगा. मैंने तो देखो, मैंने तो दो चार रेखा देखी, उनकी बोली बोली बात पे मैच कर रही है, बट भगवान जाने वो जो पैसे बता रहे वो आ क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा, we have earlier we were talking about fear of trolling. So do you think अब सोशल मीडिया पे पीपल, जो बैड साइड एंड गुड साइड वाला बात था, तो पीपल डोंट शो द बैड साइड और बैड फेज ऑफ देयर लाइफ बिकॉज ऑफ कि अब हम ट्रोल हो जाएंगे. एंड पीपल, जैसे नए लोग भी हैं, वो कंटेंट बनाने से इसीलिए डर रहे हैं कि देयर अ चांस कि भाई अगर कोई ट्रोल कर दिया मेरे को तो Exactly. See, व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? not everyone is mentally strong to take that trolling. Some people fought their way out of the trolling and made their name. You will get, मतलब ये जो नई content creator है, क्या नाम है, नैन्सी त्यागी, you know about her? आई हर्ड You हर know नेम. what kind of, you have no idea, I'll tell you. She used to create content. They were, I don't know, I shouldn't term it as, it was weird. From the way, from the starting, it was thoda weird. People usually made fun of it. They really made fun of it. और आई वोंट बी अ महान इंसान कि मैंने नहीं मजाक उड़ाया, मैंने भी किया। मुझे भी वो कंटेंट फनी लगा तो मैंने भी बोला, ठीक है, वी शेयर्ड विद अमंग आवर फ्रेंड्स कि क्या कर रही है। बट दैट गर्ल एक्चुअली, आई फॉलो हर एंड आई एम रियली अ बिग फैन राइट नाउ।
from a person who was, I didn't troll her, to be very exact. I don't write hate comments. I was like, it was funny. वो होता है ना, एक तो क्रिंज वाला कंटेंट होता है, ठीक है, क्रिंज कंटेंट से लेकर शी इज मेकिंग अ, शी एक्चुअली वर्क, ये फिल्म फेस्टिवल का, यू हैव सीन, मस्ट हैव सीन कितने सारे, मतलब इवन इतने पॉपुलर स्टार्स told her to create an outfit for them. So actually, she fought her way from the very bottom to the to halfway of the, like, uska success. She need to take a lot of steps to be more successful. Obviously, she will, but she actually fought her way there. So she took that trolling because उसको पता था कि वो ट्रोल होगी उसके लिए, and she was prepared for it because उसको अपना नाम बनाना था. तो when people troll you, it's like a bad publicity, I'll tell you, but yeah, people know you. अगर ट्रोलिंग हो रहा है, स्टिल पीपल नो यू. वो होता But ना I एक guess the concept, प्रिंट, एक प्रिंट हो जाता है लोगों के बीच में कि but आई नो हर. वो फनी होते होते भी पीपल नो इट, पीपल, एवरीवन नोस हर नाउ. uh, but I guess to reach that level where the film stars are asking you to design their costume, your content should also be good. शी बताते एक्चुअली, हैं. आई टेल यू ना, उसने बहुत मेहनत की है, एंड बिकॉज उसका मेहनत दिख रहा है, एंड वहां से लेकर वहां तक पहुंचना, इट वॉज अ ग्रेट स्ट्रगल. Because I have read the comments, I have seen people trolling her. ऐसे फनी फनी उसके, मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस उसका वो होता है ना कि took a clip of her and created another reel. तो you have that mental strength कि तुम उस ट्रोलिंग को अपने माथे पे, मतलब you don't do something bad to you, or you don't feel depressed after that. उतना mental strength भी चाहिए होता है. Not everyone has that mental strength nowadays. People are so vulnerable. They're like, अगर तुम्हें पता है कौन, अगर तुम्हारा फोटो पे अगर इतना पिक्चर्स, तुमने पिक्चर अपलोड की फॉर वेरी इंस्टेंट, पिक्चर अपलोड की, एंड you thought it was a great picture, and you didn't get that amount of likes, that affects your moods too. It Yeah, did with kind of. me, like happened with me. So what I do nowadays, I just switch off the like counts. Okay. मतलब, there are ways you can fight from it, but that really affects you somewhere around. मतलब, yeah, कुछ भी कर लो. Mainly, it depends upon your content. अब वो content कैसा है. अगर आप स्क्रीन पे जाके सिर्फ भागे जा रहे हो, तो कंटेंट आप कितना भी डालो, ट्रोलिंग होगा. ठीक है. एंड आजकल ट्रोलिंग. क्या हो गया ना कि पीपल ट्रोल यू इन द नेम ऑफ कि भाई हम तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं. वी आर ट्रोलिंग यू बिकॉज वी वांट यू टू इम्प्रूव. एंड उसके Yeah, वजह right. से क्या हो Yeah, गया right. ना कि हाँ, और उसके वजह से क्या हो गया They कि अगर justify आपको their कोई, trolling. हाँ, एंड उसके वजह से क्या हो गया कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे भी रहा है, बोल भी रहा है कि नहीं भाई इधर अच्छा करो, ये अच्छा करो, ये अच्छा नहीं था, पीपल थिंक यार ये तो ट्रोल कर रहा है. It's no more about constructive criticism. It's about finding it funny. नॉर्मल है, लोग कोई भी क्रिंज वीडियो देखेंगे ना, वो वीडियो बाद में देखेंगे, पहले कमेंट खोलेंगे, कि उन्हें पता है कि उन्हें कमेंट में ज्यादा हंसी आने वाली है, and then they like the comments, they'll enjoy themselves, and they'll start reading the comments ना. मतलब ये जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर के जो इंडियन पीपल है ना, they won't leave an outsider. मतलब फॉरेनर्स की अगर वीडियो देख ली और उसमें अगर तुम्हें एक इंडियन मिल गया, वो ऐसी ऐसी कमेंट्स लिखेगा ना कि मेरे को अगर कंटेंट भी पसंद आ रहा है ना, मेरे को कमेंट देखने के बाद भाई कहाँ से सोचा. इंडियन पीपल, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स. ये जो अभी नया ट्रेंड चला है ना, इंडिया, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, यूपी इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स. मतलब यू कांट हैंडल पीपल हियर. तुम्हें हर टाइप के लोग मिलेंगे यहाँ पे. अब इंटरनेट आज, बोल लो या रियल लाइफ बोल लो, हाँ, हर एंड टाइप के आजकल लोग तो मिलेंगे.
आजकल तो कमेंट सेक्शन खोलते ही सबसे पहला कमेंट होता है, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। I've seen that. मतलब people, I don't know, ये इनबिल्ड है इंडियंस में कि they are working their way out of it. But I don't know, they are sarcastic from the very beginning or this is just, I don't know इसको कैसे term किया जाए. There are people who bad, actually trolling is bad, but people who are creating cringe content ना उन पे भी थोड़ा सा जरूरी है उनके लिए. I won't say कि bad trolling, abusing or anything, but I don't know, abusing is not right. उनको जो करना है उनके entertainment के साथ, तुम्हें नहीं पसंद तुम मत देखो. हाँ, आई गेस दैट्स द मंत्र ऑफ सोशल मीडिया। या तो आप एकदम फाड़ू कंटेंट बनाओ, या तो ठीक एकदम है, गंदा वाला. या तो एकदम एकदम वाहियात बनाओ। मीडियोकर के लिए यहाँ पे जगह नहीं है भैया। आप अपना देख लो। आप अपना देख लो. तुम्हें ना अपने जो फॉलोवर्स और फॉलोइंग है ना उनमें काम चलाना पड़ेगा. हाँ, मीडियोकर के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। या तो आप अच्छे कंटेंट बनाओ, या तो एकदम खराब कंटेंट बनाओ। डू यू थिंक nowadays everything on social media is a content? Everything and anything is a content on social media, चाहे वो अच्छा हो एवरीथिंग या इज ना। एनीथिंग, कुछ भी हो मतलब आई डोंट नो हाउ कंटेंट क्रिएटर्स डिफरेंशिएट अमंग इट कि मेरा कंटेंट ये है, मेरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. भाई मेरे से नहीं होता है. मतलब फनी कंटेंट ठीक है, यू टर्म इट एज एट वट एवर, बट सोशल मीडिया पे हर टाइप का कंज्यूमर है. गंदा से गंदा, अच्छा से अच्छा. ठीक है, तो तुम जो भी बना रहे हो समवेयर डाउन द लाइन तुमको उसका क्या बोलते हैं टारगेट ऑडियंस मिल जाए. तुम जो बना ट्रू। रहे हो वो कोई ना कोई को तो पसंद आएगा ही आएगा. तो पर यार आजकल हाँ, आजकल बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। इनका कंटेंट देख के जेन्युइनली बहुत मजा आता है कि ठीक है यार, मतलब एक मूड रिलीव हो गया, या एक स्टोरी काइंड ऑफ मुझे कंटेंट है तो ट्रैवल देख के। कंटेंट बड़े अच्छे लगते हैं. मुझे ट्रैवल कंटेंट होते हैं ना वो वाले. डांस कंटेंट मुझे नहीं पसंद होता है. थोड़े फनी कंटेंट मतलब प्रेफरेंसेस होते हैं ना लोग के, वैसे हाँ, जो आई लाइक अधिकतर आई आई लाइक फॉलो फूड। दोस टाइप ऑफ पीपल. फूड आई कंटेंट. लाइक फूड यू फूड लाइक या see people different जितना भी बोले people don't differentiate among their content, they do, and the platform knows it. तुम्हें वैसे कंटेंट आते होंगे. मुझे ट्रैवल आई लाइक कंटेंट फूड। भर भर के आते हैं. ट्रैवलिंग मेरे को भी आता है, ट्रैवलिंग आता है और फूड कंटेंट आता है। और फैशन और ऐसा कंटेंट आता नॉर्मल है. फैशन कंटेंट, नॉट इन अ सेंस कि वैसा कंटेंट नहीं आता। फैशन कंटेंट जनरली मेरे को नहीं आता, रिकमेंड। आई आई डोंट। नॉर्मल जीन्स टी शर्ट वाले बंदे हैं तो ऐसा कुछ फैशनेबल तो वैसा कुछ ट्रेंड नहीं है, पर नॉर्मल कंटेंट आता है हाँ। फैशनेबल तो हम भी नहीं है, बट आई लाइक टेकिंग इंस्पिरेशन. Not copy paste, but taking inspiration is never wrong. I appreciate someone like what some of the content creator have a very good great sense of style. They know what suits them. So I take inspirations. Yeah. People like you who like shopping, fashion content is for them. What is the content on social media that you think कि ठीक है, ये मेरे रील्स या रील्स यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आते रहे तो आई वोंट गेट बोर्ड, आई विल Feel जस्ट bored. कीप। हाँ। Nah. Travel content. Travel content. मुझे शॉपिंग नहीं भी करनी है ना तो भी आई लाइक वॉचिंग फैशन कंटेंट्स, keeping inspirations for the future. Maybe I don't know. I not necessarily I buy that, but I am keeping some inspirations. मैं ओके। वहां जाऊंगी तो वैसे कपड़े खरीदूंगी. वैसा वाला. तो I like it. I like food contents, obviously. I'm not a foodie, but I am somewhat of a foodie. Not like an extreme level wala foodie, but yeah, I like food. Food makes me happy. But yeah, food makes me happy. Food makes me happy. Spending money makes me happy. I don't have money, but yeah, spending money makes me happy. अच्छा, how do you think does this real life affect our daily life? मतलब हम लोग का डेली लाइफ में कैसे हैम्पर करता है या किस वे का इफेक्ट, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक? हाउ डज रील इट लाइफ। इफेक्ट? रील लाइफ। हाँ, हाउ डज इट इफेक्ट योर लाइफ? एक तो डिपेंड करता है कि कैसा टाइप का रील देख रहे हो।
What ठीक है. मतलब, let's not talk about someone else, let's talk about you. What do you think, how does it affects your life and the people around you? सी, अगर हम ऐसा, इट्स समथिंग वेरी हार्ड बट अ गुड क्वेश्चन. ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता है. ठीक है, एक एक्सपेक्ट, कभी कभी कुछ फील्ड्स पे एक एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं. जैसे आई टोल्ड यू बिफोर कि वो रिलेशनशिप वाला या कुछ वैसा So it does एक्सपेक्टेशन. affect your life na. हाँ, इन अ वे, बट ठीक है, वो इफेक्ट ऐसा होता है कि आई ट्रेन्ड माई सेल्फ एंड थिंक कि भाई ठीक है, वो इफेक्ट होता है. बट व्हेन यू मीट समवन, आई डोंट, पहला कुछ टाइम के लिए तो एक्सपेक्टेशन रहता है, फिर वो बात बात करने से फिर वो समझ में आ जाता है. तो अगर वह उस टाइप का रील्स देख रहे हैं तो आई फील कि जब दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो एक्सपेक्टेशन चले जाते हैं एंड वो उतना इफेक्ट नहीं करता. Right. एंड एंड Is it wrong to वैसे keep तो expectations? नो, इट्स नॉट रॉन्ग टू कीप एक्सपेक्टेशन. if you think that person is valuable of keeping expectations, तो ही आप expectations रखो. आप सबसे expectations रखोगे तो you'll That get actually disappointed. helped me a lot. Thank you so much. This मतलब expect उससे करो जो आपकी expectations पे खड़ा उतरे. हाँ, हाँ, Right. बिकॉज ये मेरे साथ पहले बहुत बार हुआ है. आई हैव आई हैव texted people, I have started conversation with many people, same gender and opposite gender as well, and मेरे को हमेशा उनसे कुछ ना कुछ expectations रहता था See, when you कि talk with people now, when you invest energy, you expect to. It's a ओ, human nature यार. You can't tell कि मैं तुमसे expectations नहीं कर सकता या कर सकती जो भी. You expect from people. It's your parents, your friends, your partners, whatever. You have expectations. But the thing is that you should expect from people you know जो तुम्हारी expectations पूरी कर सकते हैं. तो आपको मीन्स बात ये है ना कि स्टार्टिंग से यू वोंट नो कि किससे एक्सपेक्ट करना है, किससे नहीं करना है. But you'll तो eventually get to it, know it. हाँ, तो एट फर्स्ट तो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन, हम जैसा चाहते हैं वो वैसा ही हो, काश वो वैसा ही. बट फिर इवेंचुअली यू थिंक कि ठीक है, नहीं भी हुआ तो अब चल जाएगा. तो दैट थिंग इज दैट. बाकी अगर ऐसा सोशल मीडिया कंटेंट अगर आप पे हावी हो रहा है, इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, भाई अब भैया टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, अपना थोड़ा Is it not कंजम्पशन that बंद करो. easy? It's not that easy, yaar. Not everyone can do it. I am so addicted to it na कि I need to, and I have so, and what does it makes na? It makes people attention span बहुत छोटा कर देता है तुम्हारा. जो छोटे छोटे हाँ, कंटेंट होते हैं, you can't wait for that content to complete it. You just scroll. क्या बोरिंग है, इतना लंबा कौन कंटेंट बनाता है. It's like attention span बहुत छोटा हो गया. It is affecting us in a way. तो थिंक कि यंगर जनरेशन पे कैसे इफेक्ट हो रहा होगा, उनका अटेंशन स्पैन कितना छोटा हो गया होगा. इन अ सेंस ट्रू, बट वो भी डिपेंड करता है ना कि अगर वो जो कंटेंट आप देख रहे हो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा. अगर यू आर वाचिंग अ ट्रैवल कंटेंट, वो वीडियो चाहे 1 घंटा का भी हो, यू विल वॉच बिकॉज दैट थिंग एक्साइट्स यू. एट दैट टाइम यू वोंट से कि कितना बोरिंग है यार, बहुत बोरिंग है, लेट्स स्क्रॉल इट या स्किप इट. वो मतलब वो आप नहीं करोगे. बट अब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, उसमें चले जा रहा है, बट बस फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग यूर वॉचिंग. तो वही बात हो गया, टीवी सामने खुला हुआ है, नापतोल चल रहा है एंड यूर वॉचिंग. ना आप कुछ तो बस बोले कुछ कर कुछ नहीं करना तो कुछ ही यूर देख वॉचिंग. रहे. हाँ, तो वो कंटेंट करोगे तो फिर उसमें तो अटेंशन खराब हो गई ना. इंटरेस्ट वाला चीज राइट. देखो. मेक योर सोशल मीडिया एल्गोरिदम इन दैट वे, क्राफ्ट योर सोशल मीडिया एल्गोरिदम इन दैट वे कि आपका जो इंटरेस्ट वाला चीज है वही है. एंड या, दैट्स द थिंग, एंड वही है. एंड सोशल मीडिया छोड़ने के बाद, सो इफ इट्स हार्मिंग योर पर्सनल लाइफ, you should take a break, and it's highly recommended that you should take a good फॉर दैट यू break. नीड अपना टू डू थोड़ा, योगा. तुमको it's अपना not माइंड ट्रेन करना yoga, होगा. it's आई not कांट. yoga. आई ट्राइड. I tried because I can't, and people like, you need meditation.
यू गो मेडिटेट, फिर तू इंस्टाग्राम छोड़ देगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई हैवंट ट्राइड इट, आई एम नॉट दैट, I आई डोंट हैव दैट ग्रेट ऑफ अ विल पावर, I व्हाटएवर। think connecting with people beyond social media can help. Somehow, Yeah, let's see, people might agree with us, they might not, but I yeah, think ये काफी वैल्यूएबल, डिपेंड करता है, अब लोग सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा। yeah. People have to listen to it then. इस एडवाइस को हम कॉपीराइट करवा लेंगे। हाँ, क्या? इस एडवाइस को हम कॉपीराइट करवा लेंगे। एग्जैक्टली, मतलब भैया कितना है ना, करवाना ही पड़ेगा, पीपल कांट कॉपी हाँ, अस। true. तो आज का पॉडकास्ट तो यहीं ख़त्म होता है, पर अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहें और आपको ट्रेंडी टॉपिक्स बताते रहें, तो मेक श्योर यू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।